नमस्कार, मैं हूँ भारती खंडेलवाल, प्रखंड अमृत मैगजीन से। 2 मई को प्रखंड अमृत का सबसे बड़ा आयोजन नारी टू नारायणी नारी शक्ति 2023 होटल हॉलीडे में होने जा रहा है। इस अवसर पर हम जयपुर की जानी मानी 21 महिला हस्तियों को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में सफलता के मुकाम को हासिल कराया है और दुनिया के लिए प्रेरणा बनी है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ है विभूति भारी मैम। नमस्कार मैम। विभूति मैम वैसे तो बैंकर हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में पिता के देहांत के बाद इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस ज्वाइन की और ये सिंगल चाइल्ड थी अपने पिता की, तो एक बैंकर से एक प्रिंटिंग प्रेस का सफर तय किया। तो सीधे मैम से ही जानते हैं मैम के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। मैम नमस्कार। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, किस तरीके से आपने जीवन शुरू किया, किस तरह से आगे बढ़ी? फर्स्ट टू 12th आई वाज इन एमटी एंड उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन करा इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी एंड आई वाज विद आईसेक, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है। और उसके अंदर आई स्टार्टेड बाय सेंडिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड फॉर ट्रेनीशिप्स, फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम्स। So we are spread in 87 countries of the world, and I was the one who started from the Jaipur chapter of sending my first student from here, and then the journey went on. So this was from 1996 to 1999. Yeah, so I was with ISEC and I was the vice president there of exchange program. Very young age. Yes, and that is very good because that's actually for students. So it was while doing graduation, so it was an added advantage for us. So it was a good exposure. And after that, I did my diploma in marketing from Bhavans, and then I did my management course in marketing and finance from India International Institute. And after that, I got an opportunity of working with HSBC. So I was with HSBC for 11.5 years. So from starting, you want to be a banker? I never wanted to be, but yes, just happened so. You know, after some point in life, just careers do switch, so that's how it happened. But yes, it was very nice and good learning-full experience for me. And I was the investment analyst there. So I never thought that I would, as a child, I wanted to be a doctor, and then so I was a science student, and then it switched. So it's okay. But then this was a wonderful turnaround for me, and a lot of learning-full experiences, and meeting new customers, and it was actually a new thing because we started the branch in Jaipur. So it was all the more, challenging for us also. Yeah, I enjoy doing work and I enjoy meeting people. That's my hobby. So yeah, so meeting people and learning from people is the thing which I enjoy the most. So it was very nice that we got to start this business in Jaipur of HSBC, and added a lot of clients and revenues, and having that international brand in Jaipur. It was more of investment analysis and portfolio management of customers. So that is what it was, and it was very nice because we had a lot of international exposure also. And at that time, now obviously there are lots of Indians were there, but then yes, that time we had a lot of people from UK, our international headquarters, who were here, heading the Indian chapter for us. So they were the ones who were actually managing us and stuff like that. So it was good exposure for each one of us. After the marriage also, you continued the job? Yes, of course I did. And then I had a daughter. And after that, it was going on. But your husband does that? My husband's into exports of automobile spare parts, so he was a big support system for me. He also support you in the... Oh yes, absolutely. आप सिंगल चाइल्ड भी थी, आप तब किस तरह संभाला आपने करते समय में आपने? माता पिता किस तरह से संभाला आपने? बस मेरा उनसे प्रॉमिस था when he was on his breathing his last, तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप the show will go on and होगा जैसे हो रहा है वैसे ही चलेगा, so आप चिंता मत करो, बिल्कुल मस्त रहो। And उनका बहुत मन था because he was not ready to accept that he didn't want to go. So I think so उन्हीं की will power ये थी कि नहीं, मेरे को जीना है, एक fighter थे वो। So and आज की डेट में भी in fact मैं कहीं भी जाती हूँ, मतलब it's been a while now since he is no more, but अभी भी अगर पूरे राजस्थान में for that matter कहीं पे भी आप बात कर लें, तो अभी भी मेरी आइडेंटिटी आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट
कि हाँ मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं रमेश भारी की डॉटर हूँ, तो वो रमेश भारी के नाम से ही दूसरा आदमी ना खड़ा हो जाता है, और फिर वो मतलब मेरे को मिसगाइड करने की कोशिश भी अगर कोई कर रहा हो ना तो वो कर नहीं पाता, क्योंकि शायद पता नहीं वो अंदर से उनका शायद, क्योंकि बहुत है इस फील्ड के जिनको मेरे फादर ने सिखा के और जहाँ वो है वो खड़ा करा है, एंड वो उनमें से थे जो टेक्निकल फील्ड में भी बहुत साउंड थे. सो ही वाज टू गेट इनटू द मशीनरी. उन्होंने कई इंजीनियर्स को सिखाया, कई मशीन मैन्स को सिखाया, कई इलेक्ट्रिशियंस जो हमारे टेक्निकल फील्ड के थे उनको वो करा. सो वो बहुत लोग इस चक्कर में मेरी रिस्पेक्ट और वो सब चीजें मेरे को उसका बहुत फायदा मिलता है. पर हाँ मुझे इसीलिए मुझे लगा कि भाई उन्होंने मेरे को एक बेटा समझ के ही पाला, कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा, जबकि उस जमाने में मतलब होता था गर्ल्स बॉयज, बट ही नेवर ट्रीटेड मी लाइक दैट. एंड इसीलिए जो आप कह रहे हैं वो सही है कि आपके पिता का अंतिम संस्कार भी आपने किया था उस जमाने में? हाँ मुझे लगा कि जरूरी है, क्यों नहीं. जब या तो हम ये सोच लें कि वो पुरानी चीजों को सोच के और उन बातों पे ढर्रे पे चलते रहे, या एक नए सोच के आदमी की बेटी थी मैं, तो मुझे भी उन्हीं के हिसाब से जीना है ना. वो मुझे बेटा समझते थे तो मुझे बेटे के सारे काम करने थे. तो माय मदर वाज ओके, माय हस्बैंड वाज ओके, एंड दैट्स फाइन. मतलब दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा पूछने की कोई बात ही नहीं है, तो ऑब्वियस दैट यू हैव टू डू द क्रिएशन. तो आई सेड फाइन आई विल डू इट. अब सोसाइटी तो ऑब्जेक्ट करती ही है, पर ठीक है, अब या तो आप ये सोच लो, पर मुझे मेरे फादर को हैप्पीनेस देनी थी, चाहे वो यहाँ है फिजिकली चाहे वो वहाँ है, तो उनको उससे खुशी मिलती. तो मैंने कहा कि मैं करूंगी. फिर वहां से भी उनको लेकर मैं, क्योंकि वो एंड मोमेंट पे भी मुझे कहते मुझे प्रेस ले चल, क्योंकि उनका दिल जान सब कुछ प्रेस में अटका था. वो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते थे तो वो घर नहीं जाते थे, वो हॉस्पिटल से सीधे मंदिर होते हुए और प्रेस आते थे. वो कभी भी मतलब इट वाज मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन व्हिच इज डिजीज unfortunately required, so he would directly come to the press, and we never stopped him from anything what he was doing, because I felt that was important. And work is worship, जिसको उन्होंने बिल्कुल सही मायने में करा, तो वो हम सबको सीखना चाहिए, आपको भी और मुझको भी, और हम सबको देखें कि वर्क इज वर्शिप. अगर हम वर्क को वो करें तो वो वर्शिप हमको कहीं ना कहीं पे करती है. उनको लाइफ दी उस वर्शिप में, जहाँ उनको 6 months का टाइम दिया गया था वो 4.5 साल जिए. सो इट इज दैट ये वर्शिप हमको कहीं ना कहीं पे करती है, एंड इट वाज बहुत आराम से चलती है. तो मुझे लगा कि मुझे उनका करना है तो मैंने करा. हम माता जी को भी संभाल रहे हैं, मम्मी भी अकेली के साथ. हाँ वो आती हैं, बिकॉज उनको भी मैंने बोला कि घर क्यों बैठना. शी इज ऑल्सो अ टीचर बाय प्रोफेशन. शी इज अ मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर एंड एकेडमिशियन. सो वो भी आती हैं. और पेरेंट्स की बेटी हैं. हाँ इसीलिए वही मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ दैट यू ऑल्सो हैव टू स्ट्राइव एंड be at least if not a winner, then you have to be a worker and work to aim and work for a highest. So whether you achieve it or not, it's your destiny, but you put in your utmost. That is more important, that you put in your hard work, your utmost. You don't leave any stone unturned, and rest God will see. It's okay. अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? मुझे प्रेस को ऑब्वियसली आगे लेके जाना है. मेरे को मेरे स्टाफ को मेरे जो प्रोमिसेस हैं वो मुझे फुलफिल करने हैं, क्योंकि मुझे उनको भी मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं कि ठीक है तुम्हें मुझे ये प्रमोशन देना है, ये फ्यूचर है. तो अगर मैं उनको भी कोई नजरिया दिखाती हूँ तो सिर्फ अपना ही सेल्फिश मोटिव ना पूरा करके उनके लिए भी मेरे फर्ज बनता है वो मुझे पूरा करना है. कैसे टाइम देती हैं फैमिली को अपने? एक वर्किंग वुमन के लिए बहुत हार्ड होता है. हाँ कर लेते हैं मैनेज. लेकिन वो पैशन है वो तो फॉलो करती है. हाँ नहीं दोनों चीज सब कोशिश पूरी करते हैं. वो लोग भी एडजस्ट करते हैं और मुझे भी करना पड़ता है. डॉटर तो पढ़ रही है बाहर. हाँ और बेटा आपके साथ है? बेटा मेरे साथ है. बेटे को आप रेगुलर यहाँ पर लाती हैं? हाँ मेरे साथ आती है. मैं सुबह मेरे को थोड़ा सा लेट हो जाता है आने में, बिकॉज ऑब्वियसली घर का भी थोड़ा देखना होता है. सो आई रीच अ लिटिल लेट दैट टाइम. माय मदर. ये थी हमारे साथ विभूति भारी मैम, जिन्होंने पिता का दाह संस्कार खुद किया और चौथे दिन प्रिंटिंग प्रेस ज्वाइन कर ली, और आज पिता के सपने को पूरा कर रहे हैं. और जयपुर में ही नहीं बल्कि राजस्थान और अन्य राज्यों से भी इनके पास ढेर सारे ऑर्डर हैं. मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला आज हमें.